ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر شامل کریں کہ چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف کا بڑا اعلان سامنے آ چکا ہے، جبکہ سیکٹر 11 جے کی 25 گلیوں میں پیور بلاکس کا کام مکمل کر لیا گیا، جبکہ کہا ہے کہ اگلے مرحلے میں گلیوں کو روشن کرنے کے لیے اسٹریٹ لائٹس بھی نصب کی جائیں گی۔ مزید اس رپورٹ میں۔ چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف نے کہا ہے کہ سیکٹر 11 جے میں آج 25 گلیوں میں پیور بلاکس لگانے کا کام مکمل ہوا ہے، تاہم ترقی کا یہ سفر یہی ختم نہیں ہوگا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ آئندہ مرحلے میں گلیوں کو روشن کرنے کے لیے اسٹریٹ لائٹس بھی نصب کی جائیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ علاقے میں پانی اور سیوریج کے متعدد منصوبے بھی مکمل کیے جا چکے ہیں اور محدود وسائل کے باوجود عوام کو زیادہ سے زیادہ بلدیاتی سہولیات فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے۔ چیئرمین محمد یوسف نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی ایک با اختیار اور وسائل سے آراستہ بلدیاتی نظام کی حامی ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے کراچی کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کے عوام سے ہر سطح پر ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ایک بجلی کے بل میں 16 اقسام کے ٹیکس شامل ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود شہریوں کو بنیادی سہولیات میسر نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت کراچی شدید پانی کے بحران کا شکار ہے اور سردیوں کے موسم میں بھی کئی علاقوں میں لائنوں کے ذریعے پانی دستیاب نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس ظالمانہ نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور جو وسائل ہمارے پاس موجود ہیں انہیں امانت دیانت اور ذمہ داری کے ساتھ نیو کراچی ٹاؤن کے عوام پر خرچ کر رہے ہیں۔ چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن نے دعویٰ کیا کہ کم وسائل کے باوجود نیو کراچی ٹاؤن میں مثالی ترقیاتی کام کیے گئے ہیں اور کراچی کے 25 ٹاؤنز میں سے کسی ایک میں بھی اتنا کام نہیں ہوا جتنا نیو کراچی ٹاؤن میں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کے ایم سی کا سالانہ بجٹ 25 ارب روپے ہونے کے باوجود وہ ترقیاتی کاموں میں ناکام رہا ہے۔ انہوں نے سندھ حکومت سے اپیل کی کہ واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو بلدیاتی نمائندوں کے ماتحت کیا جائے، کیونکہ پانی اور سیوریج کے مسائل پر عوام اپنے منتخب نمائندوں سے رجوع کرتے ہیں، نہ کہ صوبائی اداروں سے۔ اسی طرح سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی کارکردگی پر بھی تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کچرا اٹھانے کا کام بھی مؤثر انداز میں نہیں ہو رہا۔ چیئرمین محمد یوسف نے انکشاف کیا کہ گزشتہ 2.5 برسوں میں نیو کراچی ٹاؤن میں واٹر اینڈ سیوریج کے منصوبوں پر 9 کروڑ روپے خرچ کیے گئے، جبکہ 20,000 سے زائد گھروں تک پینے کا صاف پانی پہنچایا گیا اور ٹینکر مافیا کو شکست دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ سیوریج لائنوں کی تنصیب، کچرا اٹھانے اور دیگر بلدیاتی خدمات کے لیے ذاتی سطح پر بھی بھرپور کوششیں کی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ واٹر اینڈ سیوریج اور سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ جیسے ادارے اگر ٹاؤن کے ماتحت ہوں تو عوام کو بہتر سہولیات فراہم کی جا سکتی ہیں۔ کمزور بلدیاتی نظام کے باوجود نیو کراچی ٹاؤن کو سنوارنے کی کوششیں جاری ہیں اور عوام کو ممکنہ حد تک سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ چیئرمین محمد یوسف نے سیکٹر کے 11 کے عوام سے کہا کہ یہ تمام ترقیاتی کام عوام کے ٹیکس کے پیسے سے کیے گئے ہیں، لہٰذا ان کی حفاظت کرنا شہریوں کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ نوجوانوں، عوام کی تفریح اور صحت مند سرگرمیوں کے فروغ کے لیے سیکٹر جے 11 میں جلد ایک جدید اور معیاری پارک کی تعمیر کا آغاز کیا جائے گا۔ تقریب کے اختتام پر علاقہ مکینوں نے ترقیاتی کاموں کو سراہتے ہوئے اطمینان اور خوشی کا اظہار کیا۔ اورنگی ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں ٹاؤن چیئرمین جمیل ضیاء کے دورے، واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے ترقیاتی کام مکمل ہونے کے بعد کاموں کی حکمت عملی تیار کر لی، شاہراہوں پر گڑھوں کو بھرنے کے لیے بھی ہدایت جاری کر دی گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چیئرمین اورنگی ٹاؤن حاجی جمیل ضیاء نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے وژن کے مطابق عوام کو بلدیاتی سہولیات کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے اور اس عمل کو یقینی بنانے کے لیے افسران اور عملے کو اپنے فرائض پوری لگن اور دیانتداری سے انجام دیں۔ ان خیالات کا اظہار ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء نے اورنگی ٹاؤن کے مختلف علاقوں شارع قذافی، مولانا شوکت علی روڈ، نشان حیدر دعا چوک، جرمن اسکول، شاہ فیصل چوک، جوہر چوک، گلشن گلشن بہار، ڈسکو مور، اورنگی ٹاؤن سیکٹر 13 اور 14 کے دورے کے دوران بلدیاتی نمائندوں، محکمہ واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن، بلدیاتی افسران، پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ ویسٹ پی ایس 95 کے جنرل سیکریٹری طارق اور علاقائی عہدیداران اور علاقائی عوام کے ہمراہ دورہ کرتے ہوئے کیا۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نے پانی کی لیکیج اور سیوریج لائنوں کی مرمت کے لیے مین شاہراہوں پر کام کروائے تھے۔ ان کاموں کو مکمل کرنے کے بعد کھڈے کھلے ہوئے تھے
थे, जिस पर टाउन चेयरमैन हाजी जमील ज़िया ने कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के अफसरान से कहा, इन खुले गढ़ों की वजह से किसी भी वक्त कोई भी हादसा पेश आ सकता है, लिहाजा इन खड्डों को फौरी तौर पर बंद किया जाए ताकि आवाम की जान और माल महफूज रहे। उनका कहना था कि अली नगर से जर्मन स्कूल तक की सड़क टूटी हुई है, जिसकी वजह से इलाकाई आवाम को सख्त परेशानी का सामना है। आवाम की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए महकमा इंजीनियरिंग B&R औरंगी टाउन को हिदायत की कि फौरी तौर पर इस सड़क को मुरम्मत किया जाए ताकि आवाम का ये देरीना मसला हल हो सके। टाउन चेयरमैन महकमा इंजीनियरिंग M&E औरंगी टाउन को हिदायत देते हुए कहा कि मेन शाहराहों पर बंद स्ट्रीट लाइट्स और हाई मार्क्स की मुरम्मत के बाद फौरी तौर पर दुरुस्त किया जाए ताकि रात के औकात में आवाम को आमदोरफ्त में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। टाउन चेयरमैन हाजी जमील ज़िया ने शाहराहों पर ठेले और पथारे लगाने वालों से मुलाकात की और उन्हें समझाया कि आप अपने ठेले और पथारे मेन शाहराहों से हटा लें, उनकी वजह से आवाम को मुश्किलात दरपेश हैं और ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होती है। अगर आप ये ठेले और पथारे नहीं हटाएंगे तो महकमा इंसदादे तजावुज़ात आपके ठेले और पथारे कानून के मुताबिक जब्त कर लेगा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन औरंगी टाउन डिस्कॉम और स्कूल जो कि टाउन चेयरमैन की काविशों से क्लिक असर नौ तामीर कर रहा है। टाउन चेयरमैन ने स्कूल के तामीराती कामों का जायजा लिया। उन्होंने क्लिक के नुमाइंदों से कहा कि स्कूल को जल्द अज जल्द तामीर किया जाए और मेयार का खास ख्याल रखा जाए। उन्होंने टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एक्सन नियाज कायम खानी को हिदायत दी कि तामीराती काम की मुसलसल निगरानी की जाए और मुकर्ररा मेयार के मुताबिक। खबर शामिल करें कि टाउन चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन मलिक आरिफ आवान का टाउन की मुख्तलिफ यूनियन कमेटियों का दौरा, जारी तरक्याती मंसूबों का तफसीली जायजा लिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। टाउन चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन मलिक आरिफ ऐवान ने टाउन की मुख्तलिफ यूनियन कमेटियों का तफसीली दौरा किया, जहां उन्होंने जारी तरक्याती मंसूबों और मुख्तलिफ आवामी फलाही कामों के बारीक बीनी से जायजा लिया। दौरे के दौरान टाउन चेयरमैन ने सड़कों की तामीर और मुरम्मत, नकासी आब, सेवरेज लाइनों, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर बुनियादी सहूलियात से मुतालिक जारी मंसूबों का मुआयना किया और काम की मयार, रफ्तार और शफाफियत पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने उस मौके पर मौजूद अफसरान को हिदायत की कि तमाम तरक्याती मंसूबे मुकर्ररा वक्त के अंदर आला मयार के मुताबिक मुकम्मल किए जाएं और किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मलिक आरिफ ऐवान ने कहा कि मोमिनाबाद टाउन की आवाम को बुनियादी सहूलियात की फरहमी टाउन इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है और तरक्याती मंसूबों की निगरानी खुद की जा रही है ताकि आवाम के टैक्स का पैसा दुरुस्त सिमत में इस्तेमाल हो। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि तमाम यूनियन कमेटियों में यकसा तरक्याती काम किए जाएंगे और अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पिछले 15-20 साल से कोई काम नहीं है। जैसे आप मेरे बैक साइड पे देख रहे हैं कि बिल्कुल एक खंडार सा एक मौजूद दौरों का मंजर पेश कर रहा है। ये जो इस टाइम बैक साइड में हमारी 9 करोड़ की एक स्कीम है जो हम नूरी चौकी से लेके यहाँ तक पहले फेज में, फिर यहाँ से सेकंड हम जा रहे हैं जहाँ मोड़ तक जा रहे हैं। और ये अभी जो चौक भी हम बन रहे हैं, आप देख रहे हो कि चौक में भी काम लगा हुआ है। तो इंशाल्लाह ये आने वाले 1-2 महीने के बाद आप ये देखोगे कि एक बड़ा अच्छी सी एक यहाँ स्ट्रीट बन रही है और एक यहाँ की वो मतलब मॉडल स्ट्रीट बन रही है यहाँ से इस एरिया के लिए, जो इससे पहले इस मोमिनाबाद के अंदर टाउन के अंदर नहीं बनी है। तो ये UC4, UC5 और UC3 के लिए एक मॉडल स्ट्रीट हम बना रहे हैं जो कनेक्ट कर रही है औरंगी टाउन से मोमिनाबाद को कनेक्ट कर रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं मोमिनाबाद टाउन UC4 बिजली नगर रोड पे और ये इतना अहम रोड है कि ये 2 टाउनों को आपस में मिलाता है। औरंगी टाउन के जितने भी लोग हैं वो यहीं से बेचारे गुजरते हैं और साइड टाउन इसके साथ जो साइड एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया, सब यहाँ से कामों पे जाते हैं। लेकिन इस रोड का बहुत बुरा हाल था, तकरीबन 30 साल से इस पे कोई जो है काम नहीं हो सका। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मलिक आरिफ आवान जो है मेरा भाई, इसकी बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल बाद जो है ये काम हुआ है। चेयरमैन ने मुतालिका अफसरान को हिदायत दी कि अवामी शिकायत का फौरी अजाला यकीनी बनाया जाए और तरक्याती कामों में अवामी सहूलत को हर सूरत में मुकद्दम रखा जाए। उस मौके पर उनके हमरा UC वाइस आबिद शाह, चेयरमैन ऑफ फोकल पर्सन खिजर हयात, मुतालिका बल्दियाती अफसरान और अख्तर हरमैन भी मौजूद थे। रात गए KMC के महकमा इंसदाद तजावुज़ात के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ जारी, जिसमें मुतादिद ठेले और पथारे जब्त कर लिए गए और KMC बिल्डिंग में रख दिए गए। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद जावेद से। जी जुनेद जावेद, आगाह कीजिएगा।
देखिए जी, KMC के महकमा इंसदाद तजावज़ात की जानिब से आज मुख्तलिफ ज़िलों में ऑपरेशन किया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन के दौरान ठेले, पथारे और दीगर सामान कब्जे में लिया गया है। इस वक्त बल्दिया उज़्मा कराची का जो मरकज़ी दफ्तर है उसका ग्राउंड मुकम्मल तौर पर जो है हम देख रहे हैं कि एंटी इंक्रोचमेंट की बिल्डिंग के नीचे भरा हुआ है और यहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। जिन लोगों का सामान जब्त किया है वो अपना सामान हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ज़ीरो टॉलरेंस इख्तियार कर रखी है बल्दिया उज़्मा कराची ने कि जब तक एफिडेविट साइन नहीं होगा और कानूनी तकाज़ों को मुकम्मल नहीं किया जाएगा, जब तक किसी का भी सामान या ठेला जो है वो वापस नहीं किया जाएगा। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट अमार खान हमारे साथ मौजूद हैं। अमार साहब, कौन कौन से इलाकों में कार्रवाइयाँ की हैं? और कल हमने देखा कि सदर के इलाके में भी टाउन की टीम के ऊपर हमला हुआ है और आप लोगों के ऊपर भी ऐसे हमले होते रहते हैं। एक तो सबसे पहले जुनैद भाई आपका और आपके कैमरामैन का और चैनल का बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारे साथ हमारे एक्शंस भी कवर करते हैं। जैसे अभी भी आप साथ ही थे वहाँ पे जब मॉब बना और हमारे लिए हर्डल्स क्रिएट करे, तो उसमें आपके कैमरामैन को भी हल्की सी लगी, जिसके लिए हम आपके लिए खराज तहसीम पेश करते हैं। तो देखें, अभी हमने कार्रवाई स्टार्ट कर दी है नाइट ऑपरेशंस की, जो आपने हमारे साथ कवर करे हैं। उसके अंदर हमने साउथ रीजन, कोरंगी रीजन और ईस्ट रीजन में अभी कार्रवाइयाँ करके ख़त्म करी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कार्रवाइयाँ तो इतनी है कि हमारे पास स्टोर के लिए जगह नहीं है। हमने हमारे हेड ऑफिस के अंदर भी सामान रखना स्टार्ट कर दिया है। तो बहुत ज़्यादा सख्त कार्रवाइयाँ चल रही हैं और मॉब जो क्रिएट कर रहे हैं और जो हमारे लिए हर्डल्स क्रिएट कर लिए हैं, उनके लिए सीधी हमारा एक मैसेज है कि अब इससे भी ज़्यादा इंटेंस कार्रवाइयाँ स्टार्ट हो जाएंगी। जिसके बाद अभी जो हमने आपके सामने FIR कटवाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक में हमारी 6 FIR हो गई हैं। ये कोशिश यही करते हैं, जैसे कल टाउन के साथ या दूसरे टाउन जब वो एक्शंस करते हैं उनके साथ भी सिमिलर प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हम इसके ऊपर अब कानून की जो गिरफ्त है ना वो तेज़ करते जा रहे हैं। FIRs कटी जाएंगी, उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर्स, जो कमिश्नर हैं, मेयर साहब का सख्त ऑर्डर है, इस पर कोई किसी किस्म की टॉलरेंस नहीं होगी। अच्छा, आप लोगों ने ऑपरेशन किया था, यहाँ पे हमने देखा कि लाइट हाउस के पास ट्रक के अंदर जो है लोगों ने अपने सामान को आग लगाई थी। इसके बाद बहुत सारे ठेले, यानी 100 से ज़्यादा ठेले हमने देखा था कि आपने जब्त किए थे। वो ठेले क्या किया, छोड़ दिए? नहीं, अगर आप देखें मेरे साथ अभी आप वॉक करके चलें तो 350 हमने उनके उठाए थे, 100 नहीं, 350 थे। वो 350 के 50 हमारे पास अभी तक कॉन्फिस्केटेड हैं। उनके ऊपर FIR लॉन्च हो चुकी है, उसमें 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जो हमने SHO साहब को और हमारी टीम ने वहाँ पे उनकी वो भी करा दी है, आइडेंटिफाई भी कराए हैं और के ऊपर भी कार्रवाई चल रही है। तो ऑब्वियसली एक चीज़ तो वैसी कोर्ट ऑफ लॉ में तो रिलीज़ कैसे होगी। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि कानूनी तकाज़ों को मुकम्मल करके ही लोगों को सामान दिया जाएगा। FIR रजिस्टर्ड करवाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। एंटी इंक्रोचमेंट टीम ने कल भी एक बड़ा ऑपरेशन प्लान किया गया है, जो कि औरंगी टाउन, केमाड़ी टाउन और इसके अलावा जो सदर के मुख्तलिफ इलाके हैं और लांडी समेत जो है कायदाबाद के मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ पर भी ऑपरेशन किया जाएगा। मेयर कराची की डायरेक्शंस ये हैं कि खुसूसी तौर पर अहमद जिन्ना रोड को और बल्दिया उज़्मा कराची की जितनी अहम शाहराहें हैं उनको फौरी तौर पर जो है वो क्लियर रखा जाए, ताकि वहां पर ट्रैफिक की रवानी बेहतर तरीके से जो है वो चल सके। और खबर शामिल करेंगे KMC के महकमा HRM ने नौकरी में गफलत बरतने पर महकमा म्यूनसिपल सर्विसेज के 33 अफसरान और मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया, जबकि KMC दानियाल सियाल ने कहा कि शहर की खिदमत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। दस्तियाब वसाइल को बरोकार लाकर अवामी मसाइल का हल निकालना KMC की अव्वलीन तरजीह में शामिल है। जबकि आपको बताएं कि नेशनल गेम्स की ड्यूटी पर गफलत बरतने का नतीजा अफसरान और मुलाजमीन को महंगा पड़ गया। एडिशनल डायरेक्टर समेत 33 अफसरान और मुलाजमीन को बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा HRM ने मुअत्तल कर दिया। KMC हुक्काम के मुताबिक मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की वाज़ेह हिदायत है कि जिसने नौकरी करनी है वो दुरुस्त अंदाज में करे, वरना महकमा जाती कार्रवाई होगी। तर्जुमान KMC दानियाल सियाल के मुताबिक KMC के तमाम महकमों के अफसरान और मुलाजमीन को वाज़ेह किया जाता है कि शहर की खिदमत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। दस्तियाब वसाइल को बरोकार लाकर अवामी मसाइल का हल निकलना है। जबकि KMC की अवलिन तरजीह है कि उन्होंने कहा जिन अफसरान और मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया उनका ताल्लुक महकमा म्यूनसिपल सर्विसेज से है और उन तमाम अफसरान ने नौकरी में गफलत बरतने पर जवाब तलबी भी की। उन्होंने कहा कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की ख्वाहिश है कि शहर में तरक्याती कामों का हर शोबा बढ़ चढ़कर अपना किरदार अदा करे, ताकि शहर कराची को रोशनियों का शहर बनाया जा सके। खबर शामिल करने के लियारी टाउन के म्यूनसिपल कमिश्नर हम्माद एंडी खान ने लियारी के पार्क्स को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ पार्क्स का रुख कर लिया और तरक्याती कामों की प्लानिंग भी कर ली। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
लियारी टाउन के म्यूनिसिपल कमिश्नर हम्माद इंडी खान ने लियारी के मुख्तलिफ पार्क्स को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। उन्होंने महकमा बागात के अफसरान व अमले से बातचीत करते हुए तमाम पार्क्स में हरियाली के फ़रोग़ की हिदायत कर दी। हम्माद इंडी खान ने कहा, आवाम को हमसे बहुत उम्मीदें हैं। पार्क्स में इलाके के लोग न सिर्फ तफरीह हासिल कर सकते हैं बल्कि सुबह की चहलकदमी भी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि हर इलाके में पार्क्स का बेहतर हालत में होना बहुत ज़रूरी है, जिससे लोगों को सेहतमंद सहूलियात मुयसर आएंगी। उनका कहना था कि पार्क्स में बच्चों के लिए झूलों का इंतजाम भी करेंगे ताकि शाम के औकात फैमिलीज पार्क में आकर एंजॉय करें और बच्चे झूलों से लुत्फ अंदोज हों। लियारी टाउन के म्यूनिसिपल कमिश्नर हम्माद इंडी खान ने लियारी के मुख्तलिफ पार्क्स को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। जबकि आपको बताते चलें कि यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन ईस्ट के जनरल सेक्रेटरी इलियास सिंधु ने सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह से मुलाकात करके उन्हें चेनीसर टाउन, गुलशन इकबाल टाउन की इंतजामिया की जानिब से PAC की जानिब से तलब करदा मालूमात के रिकॉर्ड के हवाले से बातचीत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन ईस्ट के जनरल सेक्रेटरी इलियास सिंधु ने सीनियर नायब सदर अमजद गौरी के हमरा म्यूनिसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियंस अलायंस और सज्जन यूनियन के सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह से मुलाकात करके उन्हें चेनीसर टाउन, गुलशन इकबाल टाउन की इंतजामिया की जानिब से PAC की जानिब से तलब करदा मालूमात के रिकॉर्ड इदारे की इंतजामिया के पास मौजूद होने के बावजूद मुलाजमीन से रिकॉर्ड तलब करने, रिटायर्ड TMC की पेंशन की अदायगी से रह जाने वाले मुलाजमीन के पेंशन के उजरा, मसीही मुलाजमीन को क्रिसमस से कबल तनख्वाहों पेंशन की अदायगी के सिलसिले में बातचीत की। जुल्फ़िकार शाह ने उन्हें यकीन दहानी करवाई कि ये मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करवाए जा रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने ईस्ट चेनीसर टाउन के मुकद्दम लारेंस खोकर के अचानक इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार भी किया। इस मौके पर अब्बास अहमद फूल, मोहम्मद शेख, तारिक महमूद, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद ताहिर, मुर्तज़ा अली भी मौजूद थे। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर अरशद अब्दुल्ला वोहरा ने कहा है कि हम देखते हैं कि कौन क्या कर सकता है, जबकि कोऑर्डिनेशन कमेटी के हमरा उस्मानाबाद में जारी तरक्याती कामों का भी जायजा लिया है और आवाम से मुलाकात की है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर अरशद वहरा ने अराकाकीन कोऑर्डिनेशन कमेटी और कारकुनान के हमरा सदर टाउन की मुख्तलिफ यूसीस का दौरा करके तरक्याती कामों का खुद जायजा लेते हुए उन्होंने कामों की रफ्तार को तेज करने की हिदायत की। उन्होंने अब तक मुकम्मल होने वाले कामों पर ब्रीफिंग भी ली। आवाम से मुलाकात के दौरान डॉक्टर अरशद वहरा ने इनके मसाइल भी सुने और उन्हें हल करने का यकीन दिलाया। अरशद वहरा ने कहा, वफाक से मिलने वाले फंड का एक एक रुपया MQM पाकिस्तान के अरकान कौमी असम्बली अपने इलाकों में आवाम की बका के लिए लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे हलके में बेशुमार तरक्याती काम हो रहे हैं, कहीं सीवरेज लाइन, कहीं पेवर की तनसीब और कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए तरक्याती कामों का जाल बिछा हुआ है। खबर शामिल करें कि अमीर जमात इस्लामी ज़िले वस्ती सैयद वजीहा हसन का यूनियन कमेटी नंबर 4 मुबीन आटोज रोड और यूनियन कमेटी नंबर 1 बोर्ड ऑफिस रोड एजुकेशनल मॉडल स्ट्रीट का पेवर ब्लॉक के जरिए तामीर मुकम्मल करने के बाद इफ्तिताह कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमीर जमात इस्लामी जिला वस्ती सैयद वजीहा हसन ने चेयरमैन नासमाबाद टाउन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर और वाइस चेयरमैन मोहम्मद नुमान सिद्दीकी और म्यूनिसिपल कमिश्नर अतर सईद खान के हमरा यूनियन कमेटी नंबर 4 मुबीन ऑटोज रोड और यूनियन कमेटी नंबर 1 बोर्ड ऑफिस रोड एजुकेशनल मॉडल स्ट्रीट का प्योर ब्लॉक के जरिए तामीर मुकम्मल करने के बाकायदा इफ्तिताह किया। इफ्तिताह का आगाज रिबन काट के हुआ। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर जमात इस्लामी जिला वस्ती सैयद वजीहा हसन ने कहा कि नासमाबाद टाउन में तरक्याती सफर दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है। मुबीन ऑटोज रोड और बोर्ड ऑफिस रोड को आला मयार के मुताबिक प्योर ब्लॉक के जरिए मुकम्मल करना अवामी खिदमत के अज़म का वाज़ेह सबूत है। उन्होंने मजीद कहा कि नासमाबाद के पंपिंग स्टेशन टाउन इंतजामिया की अपनी मदद आपके तहत फाल हो चुके। उन्होंने बताया कि चेयरमैन नासमाबाद टाउन की जानिब से वाटर कॉरपोरेशन को बाकायदा खत लिखा गया, ताहम जवाब न मिलने की सूरत में ये पंप नासमाबाद टाउन खुद ही चलाने और इनका इंतजाम संभालने पर मजबूर होगा। टाउन इंतजामिया अपने इख्तियारात से बढ़कर अवामी मसाइल के हल के लिए काम कर रही है। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन नासमाबाद टाउन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर ने कहा कि माजी में इन सड़कों की खस्ताहाली की बड़ी वजह जेर जमीन वाटर एंड सीवरेज के बिगड़े हुए निजाम और तवील अरसे से बरवक्त मुरम्मत न होना था, जिसके बाइस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना था। इन्होंने कहा कि टाउन के महदूद वसाइल के बावजूद नासमाबाद टाउन के फंड से सड़कों की तामीर और बहाली के साथ साथ पानी की फराहमी और निकासी आपकी पुरानी और नाकारा लाइनों को भी तब्दील किया गया ताकि मुस्तकबिल में
सड़कें दोबारा टूट फूट का शिकार न हो। चेयरमैन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर ने इस अज़्म का इजहार किया कि नाज़िमाबाद टाउन में पायदार तरक्याती कामों को तरजीह दी जा रही है। वाइस चेयरमैन मोहम्मद नुमान सिद्दीकी ने भी चेयरमैन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर की खुसूसी तवज्जो और ताउन को सराहते हुए कहा कि मुबीन ऑटोस रोड और बोर्ड ऑफिस का प्योर ब्लॉक का काम शहरियों के लिए एक अहम सहूलत है और मजीद ऐसे बेहतरी के काम भी जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। इस मौके पर महकमा बागात की जानिब से बोर्ड ऑफिस रोड के दोनों अतराफ खूबसूरती बढ़ाने के लिए तकरीबन 100 से 150 पौधे भी लगाए गए, जिससे न सिर्फ माहौल बेहतर होगा बल्कि इलाके की मजमूई खूबसूरती में भी इजाफा होगा। इस मौके पर यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डायरेक्टर सैनिटेशन जहीर अहमद, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन फहीम मुस्तफा, फोकल पर्सन उस्मान गनी, डायरेक्टर पार्क आसिफ हुसैन और दीगर अफसरान भी इनके हमरा मौजूद थे। वेलकम बैक। और खबर शामिल करेंगे गुलबर्ग टाउन के चेयरमैन नुसरतुल्लाह खान की हिदायत के मुताबिक देखने में यही आया है कि फेडरल बी एरिया बिरयानी चौक से 16 नंबर कार्डियो तक की शाहराह पर तामीराती काम का आगाज कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुलबर्ग टाउन के चेयरमैन नुसरतुल्लाह खान ने तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया। फेडरल बी एरिया बिरयानी चौक से 16 नंबर कार्डियो तक की शाहराह से कारपेटिंग को उखाड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। टाउन इंतजामिया नई रोड कारपेटिंग करवाएगी। इससे कवल, सेवरेज लाइन और पानी की लाइन को बेहतर किया जाएगा। चेयरमैन नुसरतुल्लाह खान ने कहा कि गुलबर्ग टाउन की हर यूसी में तरक्याती काम जारी हैं। पार्क्स की तज़ीन व आराइश, स्कूलों का बेहतरीन निज़ाम सेहत से मुतालिक आला सहूलियात फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान के विजन के तहत तरक्याती काम हो रहे हैं। हमें ना कोई इजाफी फंड मिलता है, ना कोई सपोर्ट। टाउन में कुछ काम क्लिक प्रोजेक्ट के तहत भी जारी हैं। उन्होंने कहा, आवाम हमारे पास जो शिकायत लाती है, हमारी कोशिश होती है इसे हल करें। उन्होंने कहा, गुलबर्ग टाउन वाहिद टाउन है जहाँ सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से बेहतर बना रहे हैं और डिस्पेंसरीज में रखी गई मशीनरी प्राइवेट अस्पतालों के मुकाबले से भी अच्छी हैं। उन्होंने आवाम को यकीन दिलाया कि जमात इस्लामी के तमाम यूसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन समेत टाउन इंतजामिया आपके साथ हैं। 35वें नेशनल गेम्स के तहत वीमेन सॉफ्टबॉल इवेंट का फाइनल निहायत दिलचस्प मुकाबले के बाद इख्तिताम पजीर हो गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। 35वीं नेशनल गेम्स के तहत विमेन सॉफ्टबॉल इवेंट का फाइनल निहायत दिलचस्प मुकाबले के बाद इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान वापडा को 9-6 से शिकस्त देकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। 7 इनिंग्स तक जारी रहने वाले इस टकराव में दोनों टीमों ने आला मयार का खेल पेश किया। पाकिस्तान आर्मी ने इब्तिदा से ही जारहाना खेल पेश करते हुए खेल पर गिरफ्त बरकरार रखी। बैटिंग लाइनअप ने हर इनिंग में मुस्तकिल रन बनाकर वापडा की टीम को दबाव में रखा। वापडा ने भी मौसर खेल दिखाया और 6 रन बनाकर मुकाबले को दिलचस्प बनाया, मगर आर्मी की मजबूत हिकमत अमली फैसला कुन साबित हुई। पाकिस्तान आर्मी के स्कोरर्स 9 रन, आयशा 2 रन, हिना 2 रन, फिजा 2 रन, रमशा 2 रन, जबकि पाकिस्तान वापडा के स्कोरर्स 6 रन, मदिहा 2 रन, इकरा 1 रन, नौरीना 1 रन। फाइनल रिजल्ट: गोल्ड मेडल पाकिस्तान आर्मी, सिल्वर मेडल पाकिस्तान वापडा, ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान पुलिस ने इवेंट के दौरान मुस्तकिल कारकर्दगी दिखाते हुए तीसरी पोजीशन अपने नाम की। तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान के नामवर साबिक ओलंपियन इस्लाहुद्दीन थे, जिन्होंने खिलाड़ियों को मेडल्स और ट्रॉफियां पेश की और इनकी कारकर्दगी को सराहा। इस मौके पर तकरीब में तहमीना आसिफ सदर सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, नसीम खान सेक्रेटरी जनरल SFP, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी दिशान मर्चेंट भी मौजूद थे। साबिक ओलंपियन इस्लाहुद्दीन ने कहा कि आज का फाइनल इंतहाई मयारी और शानदार था। दोनों टीमों ने जिस नज़्म ज़ब्त और जज्बे से खेल पेश किया वो काबिल तारीफ है। पाकिस्तान में विमेन स्पोर्ट्स का फरोग खुशाइंद है और सॉफ्ट बॉल में खवातीन खिलाड़ियों का बढ़ता हुआ रुझान इस खेल के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। आर्मी, वापडा और पुलिस तीनों टीमों को इनकी मेहनत पर मुबारकबाद देता हूँ। सदर SFP तहमीना आसिफ का कहना था, वुमेन सॉफ्ट बॉल में टैलेंट की कमी नहीं। आज के फाइनल ने साबित कर दिया कि हमारी खवातीन खिलाड़ी न सिर्फ आलमी मयार का खेल पेश कर सकती हैं, बल्कि इसे मजीद बेहतर बनाने की सलाहियत भी रखती हैं। सेक्रेटरी जनरल नसीम खान, सॉफ्ट बॉल इवेंट का कामयाब इनकाद पूरी इंतजामी टीम की मेहनत का नतीजा है। हम मुस्तकबिल में भी खवातीन खिलाड़ियों के लिए ऐसे मौके बढ़ाते रहेंगे। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी दिशान मर्चेंट ने इस मौके पर कहा, कराची में इस बड़े स्पोर्ट्स इवेंट की मेजबानी काबिल फख्र है। तमाम टीमों, एम्पायर्स और ग्राउंड स्टाफ ने बेहतरीन काम किया, जिसकी वजह से इवेंट कामयाबी से मुकम्मल हुआ। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख की ज़ेर सदारत TMC कोरंगी के तमाम महकमों के सरबराहान का अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें महकमों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कोरंगी के तमाम महकमों के सरबराहान के साथ एक अहम और जामा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें मुख्तलिफ महकमों की मजमूई कारकर्दगी, नज़्म-ओ-ज़ब्त, फील्ड वर्क और अवामी खिदमत के मेयार का तफसीली जायजा लिया। इजलास के दौरान चेयरमैन कोरंगी टाउन ने तमाम अफसरान को हिदायत जारी करते हुए कहा कि वो अपने फ़राइज़ मनसबी की अंजाम दही में मुकम्मल संजीदगी, एहसास जिम्मेदारी और पेशावराना महारत का मुजाहिरा करें ताकि आवाम को बर वक्त और मेयारी सहूलियात फराहम की जा सकें। उन्होंने वाज़ेह किया कि अवामी खिदमत में किसी भी किस्म की गफलत या लापरवाही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चेयरमैन मोहम्मद नईम शेख ने इस बात पर खुसूसी जोर दिया कि शहरी मसाइल का फौरी और मौसर हल, फील्ड में मौजूदगी को यकीनी बनाना और रोजमर्रा अमूर में शफाफियत को फरोग देना हर अफसर की बुनियादी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि महकमों के दरमियान बाहमी राब्ते और हम आहंगी को मजीद बेहतर बनाया जाए ताकि तरक्याती और बल्दियाती अमूर को मौसर अंदाज में अंजाम दिया जा सके। मजीद बरा चेयरमैन कोरंगी टाउन ने तमाम महकमों को हिदायत की कि वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए अमली इकदाम करें, अवामी शिकायत के अजाले के निज़ाम को फ़ाल बनाएं और मुकर्ररा अहदाफ के मुताबिक नताइज फराहम करें। इजलास के इख्तिताम पर चेयरमैन मोहम्मद नईम शेख ने इस अज़्म का इजहार किया कि कोरंगी टाउन में शफाफ, मौसर और अवाम दोस्त बल्दियाती निज़ाम के क़याम के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। कोरंगी में गैर कानूनी तामीरात पर डीजीएसपी सीए ने आंखें बंद कर ली। सिस्टम के नाम पर बिल्डिंग इंस्पेक्टर काशिफ ने बिल्डर्स को खुली छूट दे दी। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ आमिर रजा अपनी इस रिपोर्ट में। कोरंगी में गैर कानूनी तामीरात की भरमार, एसबीसीए अफसरान ने कोरंगी को सीमेंट का जंगल बना दिया। बिल्डिंग इंस्पेक्टर काशिफ याकूब ने लखनऊ सोसाइटी, पीएनटी सोसाइटी, केडीए एम्प्लायंस सोसाइटी, अल्लावाला टाउन, अलवासे टाउन में रिहायशी प्लॉट पर पोर्शन बनाने की इजाजत दे दी। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के करप्शन को खत्म करने के दावे महज दावे ही रह गए हैं। जिस तरह तेजी से डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में पोर्शन माफिया बढ़ता जा रहा है, इससे लगता है कि कुछ अरसे में ही डिस्ट्रिक्ट कोरंगी जल्द ही एक कॉन्ट्रैक्ट सिटी में तब्दील हो जाएगा। आमिर रजा, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।